So, hello everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. तो आज की क्लास हमारी फंडामेंटल राइट्स की आखिरी क्लास है. टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट एंड आई होप ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स आर क्लियर, जो कि हमने अब तक पढ़े हैं. इन टुडे सेशन गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट. अगर ये आर्टिकल ना होता तो फंडामेंटल राइट किसी काम के ना होते. Alright, and this article guys is article number 32 which gives us the right to constitutional remedies. मतलब हम आगे समझेंगे और उसके बाद हम आर्टिकल नंबर 33, 34 और 35 जानेंगे. एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट that we will also discuss in today's session. And I hope you guys have revised each and everything. And एग्जाम का नोटिफिकेशन APSC का कब आएगा कब नहीं आएगा इसके पीछे मत पढ़ो. These sessions are helpful for your CSE examination as well because I am टीचिंग यू फॉर द लेवल ऑफ CSE एग्जामिनेशन. सो अगर APSC का नोटिफिकेशन 6 महीने बाद भी आया तो आपका कोई नुकसान नहीं है. ओके, यू आर एट द गेनिंग एंड. आपका कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो पढ़ते रहो और शांति से और ज्ञान फैलाते रहो. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइज एंड लेट्स टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट आर्टिकल नंबर 32. And article number 32, as you all know, was described as heart and soul of the constitution by the great Dr. B.R. Ambedkar. This article is the heart and soul of the constitution because if you have the fundamental rights but you cannot enforce it, okay, or you cannot go to any authority that okay, this person is violating my fundamental rights, then what is the use of fundamental right? So article 32, which gives you right to constitutional remedies, which means if the state is violating your fundamental rights, you can directly move to the Supreme Court, or under article number 226 you can also move to the high courts. So article number 32 gives you a fundamental right to ensure your fundamental rights. अपने fundamental rights को ensure करने का भी आपके पास fundamental right है, and that right is given by article number 32, which is rightly described as heart and soul of the Constitution of India by Dr. B.R. Ambedkar. Now let's talk about this article. So an aggrieved person can directly move to the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. If the state is violating your fundamental rights, you can directly move to the Supreme Court. And there are various cases in the history of independent India जहाँ पे लोग fundamental rights के violation के लिए Supreme Court गए भी हैं. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है habeas corpus केस, जिसकी हम बात आगे करेंगे. The Supreme Court can issue writs, directions or orders for enforcement of the fundamental rights. And if let's say that you filed a writ petition in front of the Supreme Court and Supreme Court find that yes, your fundamental rights are violated by the state, then Supreme Court can issue writs, direction or orders for the enforcement of your fundamental rights. Parliament can also empower any other court, not high courts, because high courts already have this power under article number 226 to issue writs, directions or orders for enforceability of fundamental rights. This is very important. This you should remember. Parliament जो है वो किसी दूसरे कोर्ट को भी empower कर सकता है कि वो issue करे writs वगैरह. Alright. And the right to move the Supreme Court cannot be taken away except as otherwise provided in the Constitution. Article number 359 है हमारे Constitution का. जब हम emergency पढ़ेंगे तो हम इसकी बात करेंगे. When in the country the national emergency is imposed, the parliament has the right to take away some of the fundamental rights. ठीक है, and that was mentioned in article number 359. इसकी बात भी हम आगे करेंगे अभी. Okay, so this is article number 32 under which an aggrieved person can directly move to the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. Alright, so I hope guys article number 32 clear है. Now article number 32 से related दो बहुत ही important केस हैं. सबसे पहला ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला. नाउ गाइस दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस एंड दिस केस इज आल्सो नोन एज द जो इसका जजमेंट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिस्ट्री में पूरा एक डार्क जजमेंट माना जाता है. तो इस केस के जजमेंट पे चलने से पहले मैं इसकी फैक्ट्स की बात करता हूँ थोड़ी सी आपके साथ. सो ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का जो केस है उसकी शुरुआत होती है इन द ईयर 1971 व्हेन द जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री वर हेल्ड. ठीक है, so in that general election, after the completion of this general election, a petition was filed in the Allahabad High Court and the case was Raj Narayan versus Indira Gandhi. Raj Narayan versus Indira Gandhi challenging the election of Indira Gandhi as to be void. जो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था, इंदिरा गांधी की जो जीत थी उसको void करार देते हुए एक petition फाइल हुई इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट. ठीक है, उसके बाद उनकी जो उनका इलेक्शन था
इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड हर इलेक्शन एज वॉइड बट ऑन सर्टेन कंडीशन। उनको ये बोला गया कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे आप, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकते हो। तो उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। सो उसकी शुरुआत हुई थी इस टाइम से। उसके बाद आफ्टर दैट इंदिरा गांधी इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने क्या करा, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, 1975 में, एज यू ऑल नो। देन अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम में एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों को अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, सो मेनी पीपल वर अरेस्टेड, सो मेनी पीपल वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स कि ये लोग, दीज पीपल विल डिस्टर्ब दी डिस्टर्ब दी जो हमारे देश का सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करेंगे, जो इंटरनल पीस है हमारे देश की उसको डिस्टर्ब कर देंगे। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट अरेस्टेड अराउंड 40,000 पीपल, लगभग 40,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और उनमें से कुछ फेमस पर्सनालिटी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज भी जेल गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम। अब जब ये सभी लोग जेल जाने लगे तो सभी लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि भाई देखो ऐसा है कि ये तो हमारे आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 14, इन सबका वायलेशन हो रहा है भाई। आर्टिकल नंबर 14, 20, 21 राइट टू लाइफ, 20 आपको पता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वलिटी, इन सभी का वायलेशन हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने कुछ केसेस में इन पिटिशनर्स के फेवर में जजमेंट देना स्टार्ट किया। देयर वर वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट व्हिच गेव द जजमेंट इन द फेवर ऑफ दीज पिटिशनर। तो इसके बाद सेम इज द केस विद शिवकांत शुक्ला। शिवकांत शुक्ला ने सबसे पहले केस फाइल किया था इन द जबलपुर हाईकोर्ट, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, वहां पे ये केस फाइल हुआ था और इनके फेवर में केस चला गया था, ठीक है। तो शिवकांत शुक्ला को रिलीज करने के आदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने दिए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। एडीएम जबलपुर ने केस पिटीशन फाइल किया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस वहां से शुरू हुआ। अब जब एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस शुरू हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डार्क बात बोली, जो कि कहीं से भी डाइजेस्टेबल नहीं है, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, बट ऐसा हुआ। 5 जजेस की बेंच थी, इसमें 4-1 के मेजोरिटी से फैसला आया था। द मेजोरिटी वाज 4-1 एंड देयर वाज अ 5 जज बेंच इन दिस एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। सो व्हाट शिवकांत शुक्ला सेड? शिवकांत शुक्ला सेड कि जनाब, this government is taking my basic fundamental rights, article number 21, article number 20 and article number 14, which is guaranteed by the constitution. And चलो article number 20 हटाओ, 14 हटाओ, they are taking away the article number 21, which is the right to life. This should not be done, ठीक है। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई कि भी देखो, in the country we have procedure established by law, procedure established by law, and you guys are arrested under MISA। तो मीसा का जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, क्योंकि लॉ ने एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है, उसके तहत आपको अरेस्ट हुआ है, तो आपका जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो लीगल है। दूसरी चीज ये कि यू कैन नॉट मूव टू हाई कोर्ट और यू कैन नॉट मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32, अंडर आर्टिकल नंबर 32 यू कैन नॉट मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर constitutional remedies of your fundamental rights, because in the country national emergency is currently imposed, and during national emergency under article number 359 all the rights have been suspended। तो ये बात थी। आर्टिकल नंबर 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, ठीक है जी। और इसमें एक जो 4-1 है, इनमें एक थे हमारे एचआर खन्ना, मिस्टर हंसराज खन्ना। ये डिसेंटिंग, इनको द डिसेंटिंग जज भी बोला जाता है। इनका इसमें व्यू ये था कि भाई देखो ऐसा है, ठीक है, मानते हैं कि आर्टिकल नंबर 21, 20, 14 ये सब सस्पेंडेड है ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट यार आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, उसका जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो आप सस्पेंड कर सकते हो, बट क्योंकि वो राइट टू लाइफ है तो एनी हाउ राइट टू लाइफ कभी भी सस्पेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी हमारे पास था, ठीक है। राइट टू लाइफ तो मतलब आप किसी भी हालत में नहीं छीन सकते, ऐसा एचआर खन्ना का कहना था। बट ऑफ कोर्स दी जजमेंट was decided by the majority, so 4-1 के जजमेंट से 4-1 के मेजोरिटी से जजमेंट आया एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं ले सकते व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड इन द कंट्री, बिकॉज आर्टिकल नंबर 359 के हिसाब से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीने जा चुके हैं, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। इसको हेबीज कॉर्पस केस भी बोला जाता है, ठीक है, हेबीज कॉर्पस केस भी इसको बोला जाता है। एंड रिमेंबर
एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इसके देखो हम फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के, बिकॉज दैट इज टू मच टेक्निकल। एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अंडर आर्टिकल नंबर 32 जो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, विच इज दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ठीक है, तो एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इतना ही पढ़ना है आपको, ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 32 वाज डिक्लेयर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The right to constitutional remedy under Article 32 is the basic feature of the Constitution. It was declared by Supreme Court in L. Chandra Kumar versus Union of India. So I hope guys these two cases are clear. ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में आपको जजमेंट ये याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी that you cannot move to Supreme Court for having your right to constitutional remedies under Article number 32 because the country is under the shadow of national emergency and all the rights have been suspended as per the provisions of article number 359. Okay, so I hope guys this is clear. Now there are five types of writs that one can file before Supreme Court, or Supreme can also issue writs to any public authority or any individual. So बात करते हैं इनके लिटरल मीनिंग आपको याद रखने हैं। नंबर 1 इज हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। रिमेंबर दिस writ कैन बी issued against any public authority or against an individual. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। दिस writ कैन बी issued against any public authority or against any individual. Now what is this writ? Let's try to understand. Let's say there is a person A. This person A has detained this person B. Now this person B went to Supreme Court and said जनाब इस A ने मेरे को illegally detain किया हुआ है, this A has illegally detained me. ठीक है, इस A ने इस B को illegally detain किया हुआ है। Then Supreme Court will issue a writ. Then Supreme Court what Supreme Court will do? Supreme Court will issue a writ to this person A who has detained this person B to bring this B before the court. इस बी को कोर्ट के सामने लाने के लिए बोलेंगे एंड देन द सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डिटेंशन की लीगैलिटी को एग्जामिन करेगा एंड देन अगर डिटेंशन लीगल होगा देन दिस पर्सन बी विल अगेन सेंड टू द डिटेंशन, अगर इलीगल होगा देन दिस पर्सन बी विल सेट फ्री बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड दिस सिमिलर writ can be issued by High Court also under article number 226. So I hope habeas corpus is clear. कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में पूछ सकते हो। Now remember this writ cannot be issued if the detention is lawful. मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया और आपको पुलिस उठा के ले गई, so you cannot file this you cannot go to the Supreme Court and file this writ. Detention is by a competent court अगर है तब भी नहीं कर सकते। Detention is for a contempt of court तब भी नहीं हो सकता है। And detention is outside the jurisdiction of court. ठीक है, अगर मान लो कि आप लेट्स से कि आप किसी लोअर कोर्ट में चले गए और आपने ये बोला तो ऑफ कोर्स लोअर कोर्ट के पास तो अथॉरिटी नहीं है, तो दैट लोअर कोर्ट कैन नॉट इशू दिस रिट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट रिट इज मैंडेमस व्हिच मींस वी कमांड। Now this writ guys can be issued against a public office and not a private individual or body, and this writ is issued by a court to a public office asking that public office to perform its duties which it has failed to perform. Let's say I went to a public office. This is a public office. Let's say this is an office, Delhi Jal Board. Delhi Jal Board का ये office है and I went to this office for any work that जो कि मेरे को करवाना था उसके लिए मैं गया, बट इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। देन आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से कि भाई देखो ये तो काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, दिस दिल्ली जल बोर्ड इज नॉट डूइंग इट्स वर्क, सो देन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट दिस दिल्ली जल बोर्ड एंड आस्क दिल्ली जल बोर्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी विच इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म, and it can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal, or the government also. Right? Now prohibition means to forbid. This writ can be issued against only judicial and quasi-judicial bodies. Do you remember this? And it is issued when a lower court or a tribunal exceeds its jurisdiction. जब वो अपनी औकात से बाहर चले जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। It prevents the lower jurisdiction or tribunal from exceeding its jurisdiction. अपना जो भी उनका jurisdiction है वो उससे बाहर नहीं जा सकते। And of course, it is not available against administrative authority, legislative bodies, and private individuals or bodies. Okay. So prohibition का मतलब ये है कि कोई भी अगर
लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे जा रहा है, देन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट अगेंस्ट दैट लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू बी इन इट्स औकात, अपनी औकात में रहने के लिए उनको बोला जा सकता है. Then certiorari, that means to be certified. This can also be issued against judicial and quasi-judicial bodies, and it is issued by a higher court on the grounds of excess of jurisdiction. मान लो कि किसी एक लोअर कोर्ट के पास ताकत है कि वो 10 साल तक की सजा दे सकता है. Let's say that this lower court has the power to give imprisonment up to maximum 10 years, and this lower court give an imprisonment of death. ठीक है, मतलब ये डेथ की सजा सुना देता है. ठीक है, तो क्या होगा, देन दिस पर्सन जिसको डेथ की सजा सुनाई गई है दैट कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड उसके बाद जो उसका एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसके लिए रिट इश्यू किया जा सकता है. राइट, एंड इट इज इश्यूड फॉर ट्रांसफरिंग अ केस पेंडिंग बिफोर अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट ऑफ अ ट्राइब्यूनल. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट रिट व्हिच इज क्वो वारंटो. बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, किसकी अथॉरिटी से तुम यहाँ पे बैठे हो. इट इज इश्यूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस. लेट्स से मैं जाता हूँ और मैं कह देता हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में मेरी जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब लग गई और मैं जाके वहाँ की चेयर पे बैठ जाता हूँ. ठीक है, बट मेरे पास मैंने उसको क्लेम कर दिया. सो जो CSS है या वहाँ पे जो दूसरा पर्सन जिसको एक्चुअली वहाँ पे आना चाहिए था वो जाके रिट फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में. वो जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट विल इश्यू रिट अगेंस्ट मी अगेंस्ट दिस पब्लिक ऑफिस. इनफैक्ट CSS के अगेंस्ट ये रिट इशू होगा और CSS फिर मेरे को यहाँ से भगा सकता है. ठीक है, इट इज इश्यूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, हेंस इट प्रिवेंट्स एनी इलीगल usurpation ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस. सो दिस इज गाइस quo warranto. आई होप दिस इज क्लियर. So this was guys article number 32. I hope article number 32 clear है. अब आगे चलते हैं article number 33 पे. Now this article number 33, 34, 35 and जो exceptions हम पढ़ेंगे these are very easy to understand. इसमें कोई भी technicality नहीं है, so ज़्यादा time हम इसमें waste नहीं करेंगे. So as per article number 33, the parliament can restrict or abrogate the fundamental rights of the member of the armed forces. Armed forces के जो member हैं उनके rights को पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है और अब्रोगेट कर सकता है. आर्म फोर्सेस में कौन कौन, जैसे हमारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द लाइक. हियर अब यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स का मतलब सिर्फ ऑफिसर्स नहीं है. इट डज नॉट मीन दैट ओनली दिस आर्टिकल कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ओनली द ऑफिसर्स. इट कैन ऑल दिस term members of armed forces also include barbers, carpenters, cooks, chowkidars, tailors, etc. And remember, it is the exclusive power of parliament, which means a state legislature cannot do this. And any law made by the parliament to restrict the fundamental right of aforesaid officials cannot be challenged in a court. अगर कोई law parliament बनाती है to restrict the right of the members of fundamental members of armed forces, then that law, that act cannot be challenged in the court. ये कहते हुए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है. राइट, मूविंग अहेड टू आर्टिकल नंबर 34. दिस इज अगेन वेरी इजी. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इफ मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया इन द कंट्री. मार्शल लॉ इज द रूल बाय द आर्मी. ठीक है, रूल बाय द मिलिट्री रूल को क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं. सो अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा है तो वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ AFSPA, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट. सो इस एक्ट, जब ये एक्ट कहीं भी किसी भी एरिया में एप्लीकेबल होता है, देन इन दैट एरिया फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड. इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और एनी अदर पर्सन और एनी एक्ट डन बाय हिम in connection with maintenance of order in any area, and the declaration of martial law in any area is different from the national emergency. Please do not confuse national emergency and martial law, दोनों अलग अलग बातें हैं. Alright, and now let's talk about the article number 35, which is the last article of this part, part number 3, and this article talks about certain powers of parliament. So the Parliament of India shall have the power to make laws with respect to these matters. ये चारों matters के आप key points याद रख लेना. Number 1, empowering courts other than Supreme Court and High Court to issue direction, orders and writs. अभी हमने पढ़ा था. Prescribing residence as a condition for certain employments or appointments in a state.
रेस्ट्रिक्टिंग मतलब किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो रेजिडेंस का एक कंडीशन लगा सकती है। रेस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा, अभी अभी पढ़ा आर्टिकल नंबर 33। एंड इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया, अभी अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 34। Also, Parliament shall have the powers to make laws for prescribing punishment for those acts which are decided to be offences under the fundamental rights, article number 17 and article number 23। ठीक है, हमने पढ़ा था अनटचेबिलिटी और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, उसके लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। एंड एनी लॉ इन्फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव इज टू कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल ऑल्टर्ड, रिपील्ड और अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई लॉ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे फोर्स में है और इनमें से किसी मैटर से वो रिलेट करता है तो वो तब तक रहेगा जब तक कि उसको चेंज ना किया जाए, रिपील ना किया जाए या फिर अमेंड ना किया जाए। ओके, सो दिस इज गाइस आर्टिकल नंबर 35। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ देयर आर three exceptions of article number three exceptions to fundamental rights which are article number 31A, 31B and 31C। 31 तो पूरा का पूरा रिपील हो गया था, आई होप यू ऑल नो। 31 वाज रिपील्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, द राइट टू प्रॉपर्टी। एंड 31A, 31B, 31C, 31A and B were added by Pandit Nehru, 31C was added by Indira Gandhi। So 31A protects 5 categories of laws from being challenged on the ground of contravention of article 14 and 19। मतलब अगर इन पांचों में से किसी भी मैटर के ऊपर लॉ बना है और कोई लॉ बना है तो आप ये जाके कोर्ट में नहीं कह सकते कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का कॉन्ट्रोवेंशन हो रहा है। ओके, सो आर्टिकल 31A प्रोटेक्ट्स दीज 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। ओके, 31B हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट प्रोटेक्ट्स द एक्ट्स इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स, व्हिच मींस अगर कोई एक्ट 9th शेड्यूल में है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन दी ग्राउंड्स की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बट हम सबने पढ़ा था ये बात दैट इन द वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था दैट बिफोर 24th अप्रैल 1973 किसी भी एक्ट का जो कि 9th शेड्यूल में है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट आफ्टर दैट एनी एक्ट कैन बी टेकन अंडर द जुडिशियल रिव्यू which is put in 9th schedule। okay, and article number 31C protects the laws made under article number 39B and 39C। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। any law made to implement the directive principles under article 39B and 39C cannot be challenged on the grounds of violation of fundamental rights under article 14 and 19। and no law containing a declaration that is for giving effect to such policy can be questioned in any court on the ground that it does not effect to such a policy। basically it protects article number laws made under article number 39B and 39C, and any law that is made under article number 39B and C cannot be challenged on the grounds of violation of fundamental rights under article number 14 and 19। okay, so guys this was about this session today। I hope the fundamental rights is clear and I hope मैं सक्सेसफुल हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स समझाने में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताइए जाके दैट कंप्लीट इंडियन पॉलिटी इज बीइंग टॉट हियर बाय मी। एंड आगे आने वाले सेशन में दैट इज ऑन सैटरडे वी विल डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस the controversy between fundamental duties and fundamental rights। that session guys will definitely be very entertaining for all of you and I'll try कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा entertaining बना सकूं ताकि आप लोग बोर ना हो। okay, so I hope fundamental rights की चीज़ें clear है। thank you so much for watching। I'll see you on Saturday in next session। goodbye, take care and God bless।